Bismillahirrahmanirrahim. Gentlemen, today we are going to learn about a new tense which is known as present perfect continuous tense. This is the fourth branch of the present tense and which is known as in the Urdu language Fail Hal Mukammal Jari. First of all, we will have to know or identify this present perfect continuous tense. What are its symbols which are helpful for the identification of present continuous tense. So gentlemen, اردو کا حرف و فقرہ جس کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہوں وغیرہ وغیرہ ہو، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں وقت مقررہ اور وقت معینہ کا بھی باقاعدہ تعین کیا جاتا ہے. اس میں پوائنٹ آف ٹائم اور پیریڈ آف ٹائم کو بھی باقاعدہ سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو ایسے سینٹنسز اردو زبان کے جن کے اندر باقاعدہ وقت معینہ بھی ہو اور وقت مقررہ بھی ہو، پوائنٹ آف ٹائم بھی ہو اور پیریڈ آف ٹائم بھی ہو، اور اینڈ پہ اس اردو فقرے کے آخر میں رہا ہے، رہے ہیں، رہی ہے، رہا ہوں وغیرہ ہے، تو وہ فقرہ آپ کا فعل حال مکمل جاری یا فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہوگا. فار ایگزامپل میں آپ کو کچھ ایگزامپلس کوٹ کرتا ہوں اردو زبان میں سے چند فقرات کی. وہ 1 گھنٹے سے کھانا کھا رہا ہے، وہ 5 سالوں سے اس مکان میں رہ رہا ہے، وہ 1980 سے سعودی عرب میں رہائش پذیر ہے، وہ صبح سے ایکسرسائز کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صبح سے، شام سے، دن سے، آدھی رات سے، 4 بجے سے، 5 سالوں سے، 2 ہفتوں سے، 1 سال سے، یا 1980 سے، یا آدھی رات سے، اس میں باقاعدہ پوائنٹ آف ٹائم بتایا گیا ہے، پیریڈ آف ٹائم بتایا گیا ہے، جو بہت بڑی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اردو زبان میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی. فار ایگزامپل میں ایک سینٹینس لکھتا ہوں، ہی ہیز بین He has been eating meal since 02 PM. اب دیکھیں اس میں باقاعدہ آپ کا جو ایک ٹائم کو پوائنٹ کر دیا گیا ہے، جس میں ٹائم پوائنٹ کر دیا جائے، آپ کا وقت مقرر کر دیا جائے، باقاعدہ ٹائم کو اسپیسیفائی کر دیا جائے. صبح 7 بجے سے، صبح سے، دوپہر سے، شام سے، آدھی رات سے، سوموار سے، منگل سے، بدھ سے، جنوری سے، 1970 سے، 1920 سے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو کیا ہوگا، اس میں باقاعدہ ٹائم اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے. تو اس میں ہم باقاعدہ جہاں پہ ٹائم اسپیسیفائی ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں وہاں پہ سنس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جہاں پہ ٹائم اسپیسیفائی نہیں ہوتا ہے، ایسے فقرات جن میں کوئی ٹائم اسپیسیفائی نہیں ہوتا، تو وہاں پہ فار کا استعمال کیا جاتا ہے. کیسے ٹائم اسپیسیفائی نہیں ہے، وہاں پہ ایک مدت بتا دی گئی ہے، 4 دنوں سے، 4 گھنٹوں سے، 4 مہینوں سے، 5 سالوں سے وغیرہ وغیرہ، کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے، کئی گھنٹوں سے، کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے، کئی صدیوں سے. تو وہاں پہ ٹائم کو پوائنٹ نہیں کیا گیا ہے، ویسی مدت بتا دی گئی ہے، جی اچھا اتنی مدت ہو گئی، اتنے مہینے ہو گئے، اتنے ہفتے ہو گئے اور اتنے سال ہو گئے. تو ایسے فقرات جن میں باقاعدہ سے کوئی ٹائم پوائنٹ نہیں کیا گیا ہے، سمپل ایک مدت بتا دی گئی ہے، تو ایسے اردو والے فقرات اور ان کے آخر پہ رہا ہے، رہے ہیں، رہی ہوا ہو، تو وہ سارے فقرات کیا ہوں گے، فعل حال مکمل جاری ہوں گے. یہ تھی اس کی اردو آئیڈینٹیفیکیشن. ناؤ وی پروسیڈ اٹس انگلش انٹروڈکشن اور انگلش آئیڈینٹیفیکیشن. اس کی انگریزی پہچان یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کا ہیلپنگ ورب، اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز اور بین یہ اکٹھا استعمال ہوگا، اور فرسٹ فارم آف دی ورب، فرسٹ فارم آف دی ورب پلس ING. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ آبجیکٹ کا استعمال ہوگا، پھر آپ کا پوائنٹ آف ٹائم اور پیریڈ آف ٹائم بتا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، پوائنٹ آف ٹائم اور پیریڈ آف ٹائم جہاں پہ آپ کو یہ بالکل پن پوائنٹ بتا دیا جائے، وقت یا وہ ٹائم بتا دیا جائے
तो उस वक्त आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पे सिर्फ मुद्दत बता दी जाए, वैसे कुछ ज़माना बता दिया जाए, कोई टाइम स्पेसिफाई न किया जाए, कई दिनों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से, कई सालों से, कई सदियों से, तो फिर क्या होगा, उसमें आप फार का इस्तेमाल करेंगे। अमूमन हमारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इस चीज़ में होते हैं कि सर हम सिंस और फार का इस्तेमाल कैसे करें। सिंस और फार का इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। और इनका तीनों टेंसेस के अंदर जो सिंस और फार का इस्तेमाल है ये बिल्कुल एक जैसा है, सेम है, इसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। एक दफ़ा फिर मैं आपको हाईलाइट करता चलूँ, आपको बताता चलूँ, जहाँ पे टाइम पॉइंट कर दिया जाए, स्पेसिफाई कर दिया जाए, वक्त मुअय्यन बता दिया जाता है, तो उस वक्त आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पे टाइम नहीं बताया गया, कई दिन, कई साल, कई घंटे, कई महीने, कई हफ्ते, कई सदियां वगैरह वगैरह इस तरह कर दिया जाए, तो उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती है टाइम की, तो लिहाजा वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, फार का इस्तेमाल करेंगे। सिंस और फार का जो इस्तेमाल है ये इक्वल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, इन दोनों टेंसेस में इसका इस्तेमाल बिल्कुल सेम है। अगले हमारा जो प्रोसीजर है वो आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब दो ही इस्तेमाल होते हैं, हैव बीन और हैज़ बीन। हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम सिंस और फार का आप इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह आप अपना सेंटेंस मुकम्मल कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा अगला जो स्टेप है वो हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना। वो कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंतहाई आसान तरीका है इसको नेगेटिव बनाने का, कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आप नॉट का इजाफा कर देंगे, तो अल्टीमेटली आपका ये जो सेंटेंस है, वो किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बड़े आसान से तरीका है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आप कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप उसको नॉट का इजाफा करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला जो इसका स्टेप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक सिंपल सेंटेंस होता है, उसको आप जब इंट्रोगेटिव बनाना चाहें, सवालिया बनाना चाहें, तो सवालिया फिक्रा बनाने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है, इसको उठा के आप सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, तो आपका जो सिंपल सेंटेंस होगा दैट विल बी अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हम आपको ये करके देते हैं, Has he been eating meal since 2 PM, और आखिर पे आप इसका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। याद रहे कि हर एक सवालिया फिक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे एक और सेंटेंस में आपको लिख के दे रहा हूँ, हैव दे राइडिंग हॉर्स सिंस मॉर्निंग, और आखिर पे आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सो जेंटलमैन, ये था आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हमने इसको आइडेंटिफाई किया उर्दू ज़बान में पहचानने के लिए कि उर्दू ज़बान का आरोफ फिक्रा जिसके अंदर पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वक्त मुकर्ररा और वक्त मुय्यना का बाकायदा तय्युन कर दिया जाता है, और फिक्रे के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हूँ आ जाता है, तो वो फिक्रा क्या होता है, फेल हाल मुकम्मल जारी का, या उसको अंग्रेजी ज़बान में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उस फिक्रे का ताल्लुक इस टेंस से होगा। और नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि उसकी अंग्रेजी पहचान क्या है। अंग्रेजी पहचान के लिए बड़ा ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होगा। हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ का इस्तेमाल होंगे, वो पहले भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हमेशा आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आप हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे,
आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जनाब आप बीन का इजाफा करेंगे, बीन के इजाफे के साथ ही आप ईटिंग जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है साथ ING लगा के, और बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के फौरन बाद पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के मुताबिक आप सिंस और फार का इस्तेमाल करेंगे। और आखिर पे वहाँ पे जो भी मुद्दत होगी या कोई टाइम मेंशन होगा, 1980 है, वहाँ पे 04 PM है, 7 o'clock है, 8 o'clock है, संडे है, मंडे है, फॉर सो मैनी ईयर्स है, फॉर सो मैनी डेज है, फॉर सो मैनी सेंचुरीज है, फॉर सो मैनी मंथ्स है, फॉर सो मैनी डेज है। तो ये चीज़ें वहाँ पे बाकायदा से मेंशन कर दी जाएंगी। तो और उसके बाद हमने ये देखा है कि इसको हम सवालिया कैसे बनाएंगे। सवालिया बनाने के लिए इनकी जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है, इनको उठा के आप सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और बाकी तरतीब फिक्र की सेम रहेगी, और आखिर में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट जो होगा इसको प्रॉपर्ली जब आप नेगेटिव बनाना चाहेंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद आप नॉट का इजाफा कर देंगे, तो ये आपकी जो सिंपल सेंटेंस हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग मील सिंस 2 o'clock कह सकते हैं, 02 PM कह सकते हैं आप। और उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है, अगर आप इसको इस इंट्रोगेटिव से लेके सिंपल में जाते हैं, दे हैव बीन राइडिंग, सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे दे हैव बीन राइडिंग, they have been riding horse since morning। अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, they have not been riding since morning, तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। और अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए have they been riding horse since morning, have they been riding horse since morning, और आखिर पे आप इसका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।